Good morning, class 5 student. I am studying your 12th chapter and its name is A Common Man. A Common Man. तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी हमसे क्या कहती है. Once there lived a man named Raj. He was a middle-aged man. He was born in a poor family but raised well by his father and mother. His father owned a welding shop and used to work for more than 12 hours a day to lead a decent living. Still, Raj's father could not earn enough money to provide a luxurious living to his family. Raj was an average student in his school and used to score around 60% marks. Raj's dream was to become a doctor. Since his marks were not very high, he could not get the desired course he wanted to study. He joined a bachelor's degree course, completed the course successfully, and got a job in a company. His life was going on with no dramatic change. His father was still working in his welding shop and earned for his living. After getting a permanent job, Raj's parents wanted him to marry. He got married to a lady from his native town and he also got promoted in his job. After a few years, he had beautiful twin boys. Later, Raj began to earn a handsome salary and started to live a luxurious life. He bought a new house and new cars. Some of the luxuries were really unnecessary. His company provided him a car. Still, Raj purchased a new car. After almost 6-7 years with Raj's luxurious life, he could not manage all the household expense and could not afford to pay for the children's education and other necessity of life. His father fell sick and could not continue his work in the welding shop. He requested Raj to give some money for his treatment and also for the household expense. Raj, who was already suffering from financial crisis, shouted at his parent and told that he had no money to help them. Raj complained to his parent, "You never sent me to a big school. I was not provided with expensive clothes. You feed me my favorite food very rarely. Also, I was not able to taste a few varieties of food. When I got low marks, you did not have enough money to improve my academic. And it took more than 10 years for me to get stilled. Now I am again struggling for money. You did not do anything to help me and you are a burden to me. Don't come to me again." His parent left saddened. After a week, while Raj was on an official tour, he met a small boy named Arjun. He was selling toy. Arjun requested Raj to buy something. Raj asked Arjun why he was selling toy instead of study. Arjun replied, "My father met with an accident a year ago and he lost one hand. He cannot walk now. My mom is working as a maid at a few houses. I am helping my parents by selling toy. I go to school and sell toy only in the evening. I work for 3 hours a day and I will study at night." Raj purchased a few toys from Arjun and he learned a lesson from the life of Arjun. At a very small age, Arjun was helping his parents, but Raj, who was just unable to meet the expensive lifestyle, neglect his parents. कहता है कि ये एक कहानी है एक कॉमन मैन की, जो कि साधारण से इंसान की एक कहानी है जिसका नाम क्या रहता है, राज रहता है. वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है. उसके पापा एक वर्कशॉप चलाते हैं, ठीक है, वेल्डिंग वर्कशॉप, जहाँ पे चीज़ों को जोड़ा जाता है. आपने देखा होगा लोहे की चीज़ें जहाँ पे बनाई जाती हैं और जोड़ी जाती हैं, उसे वेल्डिंग शॉप कहा जाता है. तो उसके पापा वहाँ पे ही वर्क करते हैं, मतलब वो शॉप चलाते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि वो जो राज रहता है वो ज़्यादा पढ़ने में तेज़ भी नहीं रहता है, ठीक है. उसे 60% मार्क्स ही आते हैं, लेकिन उसका सपना क्या रहता है, डॉक्टर बनने का, जो कि पूरा नहीं हो पाता है. वो मतलब साधारण सा कोर्स कर लेता है, उसके बाद एक जॉब कर लेता है धीरे धीरे, मतलब इसी जॉब में वो आगे बढ़ता है. उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और उसे 2 बच्चे होते हैं, ठीक है.
और वो जो मतलब उसका जॉब है वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हैं तो उससे काफ़ी अच्छी इनकम होने लगती है। तो वो मतलब जैसे ही उसके पास पैसा आता है वो उसे अननेसेसरी रूप में खर्च करना शुरू कर देता है। वो एक बड़ा सा बंगला ले लेता है, बड़ी सी गाड़ी ले लेता है जिसकी ज़रूरत उसे नहीं है, ठीक है। वो मतलब गाड़ी उसे कंपनी ने भी दी है लेकिन उसे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो गाड़ी खरीद लेता है और वो एकदम पूरा हाई फाई से जीने लगता है। लेकिन कुछ ही साल के बाद, 7-8 साल के बाद क्या होता है कि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता है, मतलब जितना वो खर्च कर रहा है वो उतना अर्न नहीं कर पाता है, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो एकदम खिंचा सा बहुत परेशान रहने लगता है कि मैं तो इतना कमा नहीं पा रहा हूँ जितना मतलब मेरी आवश्यकता है, क्योंकि उसने तो पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे इधर उधर बिना वजह के। तो इसी समय क्या होता है कि उसके माँ बाप, चूँकि उसके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उसके पापा बीमार हो जाते हैं, तो उसके पापा राज को बोलते हैं कि बाबू मुझे ना, मैं अब बहुत बीमार रहता हूँ, मुझसे अब काम नहीं होता है, मुझे अपना इलाज कराना है, मुझे थोड़े से पैसे दो और मुझे घर खर्च के लिए भी पैसे चाहिए। इस पर वो उन पर चिल्लाने लगता है, ठीक है, कि मैं क्यों दूँ आपको पैसे, आपने मेरे लिए क्या किया है, मुझे ना आपने अच्छे से पढ़ाया, ना मुझे अच्छे कपड़े दिए, ना मुझे अच्छी लाइफ दी, ना मुझे अच्छे खाने दिए, मैं क्यों दूँ आपको पैसे। मुझे जब ज़रूरत थी पढ़ाई की तो आपने मुझे पढ़ाया ही नहीं, मुझे जब अच्छी चीज़ों की ज़रूरत थी तो आपने मुझे दिया ही नहीं, तो इसलिए मैं आज ये प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। आपने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, फिर मैं आपके लिए कुछ करूँ, क्यों आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं, चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा वो उन्हें चिल्लाता है उन पर। तो वो क्या करते हैं, वो उसका घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि वो अपने जॉब पे किसी काम से किसी दूसरी जगह जाता है, तो वो वहाँ देखता है कि एक छोटा सा बच्चा खिलौना बेच रहा है, ठीक है। तो वो राज से भी कहता है कि सर कुछ खिलौने खरीद लीजिए। तो राज उससे बोलता है कि अरे तुम ये पढ़ने की उम्र में ये खिलौने क्यों बेच रहे हो। तो वो कहता है कि क्या है ना सर कि मेरे पापा ना मतलब मेरे पापा का एक हाथ ना कट गया है, ठीक है, तो मुझे अपने घर को चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है जिससे हमारे घर का गुजारा होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी पैसे कम पड़ते हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये 3 घंटे खिलौने बेचता हूँ, उसके बाद सुबह में स्कूल जाता हूँ, शाम में ये खिलौने बेचता हूँ और फिर रात में अपनी स्टडी करता हूँ। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा मेरे पेरेंट्स को हेल्प हो जाता है। तो ये बात जब राज सुनता है तो उसके दिमाग में अपने पेरेंट्स के प्रति ये आता है कि अरे ये इतना छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है और मैं इतना बड़ा होकर के भी अपने लिए ही रो रहा हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो उस बच्चे से एक मोरल लेसन लेता है कि जब ये इतना छोटा बच्चा अपने माँ बाप की हेल्प कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये लेशन ये कहता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है आपको क्या करने के लिए, आपको पालने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए हमेशा यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओके, एंड यू हेल्प देम। आप हमेशा उनका क्या कीजिए, सम्मान कीजिए और उनकी मदद कीजिए। इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू यू। तो व्हाट इज द लेसन, moral lesson of this story? It is your duty to take care of your parent when you get older and mature. जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाए तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका ख्याल करेंगे, ठीक है। आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं, आपने मुझे मतलब मेरे चीज़ें नहीं खरीद के दी तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ। वो अगर आपको नहीं करते तो क्या आप जीवित रहते? नहीं। तो कल बापू आप भी बड़े होंगे, कल आपके भी पेरेंट्स को आपके हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आप क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ना उनकी। हमेशा अपने पेरेंट्स की हेल्प करें और उनका रेस्पेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।